inside every sermon is the proceeding word of the living God. हर एक प्रचार के भीतर परमेश्वर का जीवित या भेजा गया वचन होता है। And that one word, if you catch it, is powerful enough to transform your entire generation. और अगर एक वचन आपने वो पकड़ लिया तो वो इतना शक्तिशाली है कि आपकी पीढ़ियों को बदल के रख देगा। होशाया 4:6 लगा है, होशे 4:6। मैं चाहता हूँ आप पढ़ो इसको, क्या है, I want you to क्या read. लिखा है परमेश्वर के वचन ने। See what it says. देखो क्या लिखा है, मेरे ज्ञान न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। किसकी प्रजा की बात कर रहा है परमेश्वर? अपनी प्रजा की। कह रहा है क्यों नाश हो रही है मेरी प्रजा? क्योंकि उन्हें मेरा ज्ञान नहीं है। He's saying my people are destroyed for the lack of knowledge. Whose people? God's people, because they don't have knowledge. तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। Because you have rejected knowledge, you've despised it. आज भी जब वचन का प्रचार होता है आपको कुछ लोग मिले फोन में, Even today when the word is being preached, उसका वचन कहता है क्योंकि तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसीलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊं। तू मेरा याजक नहीं हो सकता, तू मुझे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, तेरे मुंह में मेरे वचन नहीं होंगे क्योंकि तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। because many people are mocking when the word is being preached. They are occupied in their phone and they are mocking when the word is being preached. The word says, because you have rejected knowledge, I will also reject you from being priest for me. You will not have my word in your Cannot be mouth. my priest. तो Yes, मेरे you are याजक my ना हो। son and you are my daughter. हाँ तुम मेरे बेटे मेरी बेटी हो, You are not. You cannot act as my priest. लेकिन मेरे याजक का काम नहीं करोगे। इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी Because- तेरे लड़के बालों को छोड़ दूंगा। Because you have forgotten the law of your God, I will also forget your children. Now God doesn't mean that God will forsake you. मगर इस बात को समझो कि जो आगे तूफान आने वाले हैं, परमेश्वर ने पहले से आपको उसके लिए वचन भेजा। अगर आपने वो रस्सी ही नहीं पकड़ी जो आपके लिए भेजी गई थी, तो आपने उस मदद को ठुकरा दिया जो परमेश्वर पहले से आपको देना चाहता था। It's not that God will forget you or he will reject you, but he's saying that he will, the help that he had sent for you because of the storms that were coming in the future, when you did not accept the rope that he had sent to help you, how will he be able to save you from what's coming? Every sermon, inside every sermon is the proceeding word of the living God. हर एक प्रचार के भीतर परमेश्वर का जीवित या भेजा गया वचन होता है। And that one word, if you catch it, is powerful enough to transform your entire generation. और अगर एक वचन आपने वो पकड़ लिया तो वो इतना शक्तिशाली है कि आपकी पीढ़ियों को बदल के रख देगा। You have to understand, Rhema cannot be taught. It has to be caught by faith. ये रेमा वचन सिखाया नहीं जा सकता, इसको विश्वास से पकड़ना पड़ता है। ओह, तो शुरू भी नहीं किया मैंने। Amen. चलो ठीक है। अब ये जो बालक हैं या ये बेब हैं, जो ये शब्द था, कैन यू पुट द वर्ड चाइल्ड इन ग्रीक? इट्स द ग्रीक वर्ड नेपियोस। नेपियोस, The word child in Greek is the word nepios. नेपियोस। ये जो शब्द है ये नए नियम में 14 बार आता है This appears 14 times in the New Testament. और 95% से ज्यादा ये नवजात शिशु की बात करता है या बेब। Whenever many times in the scriptures the word babe is used for nepios. Here it's child, but it's the same thing, babe. Most of the times this is used for a newborn child, एक नवजात शिशु के लिए, पहला क्या है? Not speaking, जो यानी बोलता वो नहीं। बच्चा जो अभी बोलना नहीं सीखा। A child that has not yet learned how to speak. Hear this. जो मसीह लोग अभी तक वचन बोलना नहीं सीखे, कभी अपने उस इनहेरिटेंस में, उस विरासत में नहीं चल सकते। Those believers that have not learned to speak the word can never walk in the inheritance kept for them.
an infant, an immature Christian babe, child. एक नवजात बच्चा, एक इमेच्योर मसीह. ये अपोस्टल पॉल कुरिन्थ की कलीसिया के लिए कह रहा है जो एक नए नियम की कलीसिया है. Apostle Paul is saying this for the church of Corinth, which is in पहले New कुरिन्थियों Testament. 3 में हम चलते हैं 1 से 3. 1 Corinthians 3. हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से. And I, brethren, could not speak to you as to spiritual people, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में क्या है, बालक हैं. but as to carnal, as to babes in Christ. यानी अगर आप जिंदगी भर मसीह में बालक रहेंगे तो वो बातें परमेश्वर जो आपको बताना चाहता है वो नहीं बता सकता, क्योंकि अभी आप उन बातों को ग्रहण नहीं कर सकते. So if you will stay as a child all life long, the things that God wants to tell you, He will not be able to tell you. English Bible uses the word carnal. अंग्रेजी बाइबल में शारीरिक या कार्नल शब्द लिखा है. I could not speak to you as to spiritual people, but as to carnal, as to babes. Now he explains, as to carnal, as to babes. That means carnal Christians are immature Christians. Carnal believers are babes in Christ. That means if a person is a babe in Christ, he is a carnal believer. वो कह रहा है अगर एक मसीह बच्चा है, मसीह में बच्चा है कोई, तो वो शारीरिक है या दुनियावी है. कार्नल का क्या मतलब है? जो शारीरिक है, शरीर की इच्छाओं के द्वारा चलते हैं, अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा चलते हैं. Carnal means those that walk by the flesh, by their five senses. जो आंखों को अच्छा लगता है उसके पीछे जाते हैं, जो शरीर को अच्छा लगता है उसके पीछे. आत्मा के चलाई नहीं चलते, शरीर के द्वारा चलाए चलते हैं. Whatever is pleasant to their eyes, whatever their body desires, they go for that, but not led by the Spirit. क्या परमेश्वर के बच्चे मसीह में बालक हैं? Are they children of God? Yes, but they are babes in Christ. मसीह में बालक हैं They are babes in Christ, मगर शारीरिक हैं. but they are carnal. क्या है? शारीरिक हैं. They are carnal. और इसीलिए उस विरासत में नहीं चल सकते जो परमेश्वर ने उनके लिए रखी है. And that's why they cannot walk in the inheritance God has kept for them. अब ये कौन है? Now, who are these? क्या चिन्ह है कि एक बिलीवर, कोई मेजरमेंट तो है नहीं. आप शरीर में तो किसी को देख लेते हो, तो आप देख के बता देते हो ये छोटा बच्चा है या ये परिपक्व व्यक्ति है या ये मिडिल एज आदमी है. मगर आत्मा में कैसे बताओगे? क्योंकि आत्मा तो दिखाई नहीं देती. When you can see someone in the flesh, you can tell if they're a little babe or a grown man or middle age. But how can you tell about the Spirit? ओके, वर्स 2. मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया. I fed you with milk and not with solid food. मैंने तुम्हें क्या किया? दूध पिलाया, मैंने तुम्हें अन्न नहीं खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो. I fed you with milk and not with solid food. For until now you were not able to receive it, and even now you are not able to. Carnal believers cannot handle the deep things of the Spirit. शारीरिक विश्वासी आत्मा की गहरी बातें नहीं झेल सकते, नहीं संभाल सकते. वर्स 3. तीसरी आयत. अब देखो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसीलिए, क्यों हो शारीरिक? इसीलिए कि जब तक तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं हो? You are still carnal, for where there are envy, strife and divisions among Hear you, this. are you not carnal? इसका मतलब हमेशा याद रखना, कलीसिया के अंदर हमेशा वो लोग जो झगड़ा उत्पन्न करते हैं, डाह उत्पन्न करते हैं, चाहे कितना भी स्पिरिचुअल दिखाएं, बच्चे हैं, शारीरिक हैं. So those people in the church that cause envy and strife and divisions, no matter how spiritual they show themselves to be, they are babes in Christ. इंग्लिश बाइबल सेज एनवी, जलन रखते हैं, जलते हैं. जब दूसरा विश्वासी पनपता है, जब वो फलता फूलता है, तो इनको आग लगने लग जाती है. अरे तुम्हारा भाई तो बढ़ रहा है, तुम्हारी बहन ही तो बढ़ रही है,
अगर सच में कहते हो कि ये यीशु का परिवार है तो क्यों नहीं हम सेलिब्रेट करते जब दूसरा बंदा बढ़ता है? When another believer grows, they feel envious and because they are babes. But why don't they celebrate when their brothers and sisters grow? That's why they are carnal. इसीलिए वो Envy, strife. दाह और झगड़ा. जहां जाएंगे वहां झगड़ा करेंगे. Wherever they go, they will fight. जिस चर्च में थे वहां झगड़ा, यहां आ गए तो अब यहां झगड़ा, खाने में जाएंगे तो वहां झगड़ा, कैफे में जाएंगे वहां झगड़ा, हर जगह झगड़ा करेंगे. क्यों? क्योंकि शारीरिक हैं, बच्चे हैं. In the previous church where they were, they had a fight there. When they came here, they had a fight here. In the Father's kitchen, they'll have a fight here. In the cafe, they will fight. Why? Because they're a babe in Christ. मगर खुद को बहुत आत्मिक परिपक्व मानते हैं. But they believe, they think they are very spiritually grown. जूडा को लगता है वो गाड़ी चला सकता है अभी. Judah thinks he can drive a car right now. उसको लगता है ऐसा. That's what he thinks. कई लोगों को लगता है. That's what many people think. ठीक है? छुरियां तो नहीं चल रही? चलनी तो चाहिए. 2026 है. अगर पेड़ को बढ़ना है तो माली उन टहनियों को काटता है जिससे बढ़ोतरी हो. If the tree has to grow, the gardener clips off those branches that the tree can grow. There is no growth without pruning. बिना छटाई किए बढ़ोतरी नहीं है. मसीह में बालक हैं. There is good news. मसीह में है. They are babes in Christ, but अच्छी खबर यह है कि वो मसीह में है. They are in Christ. कलीसिया में आए They came to the church. पहले दिन First day. वचन जो चल रहा नहीं. The word they don't care. यहाँ पे उस लड़की ने ऐसी टी शर्ट पहनी थी, Oh, that girl was wearing उसके a t-shirt बाल like ऐसे थे, His- her उसके hair was बाल like- ऐसे थे. her hair was हम like तो that. प्रभु में हालेलुया Oh, हालेलुया we have बहुत. the Lord. Hallelujah, hallelujah. हमारी बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है. तो मैं कहता हूँ दूसरी कलीसियाओं में क्यों जाते हो लोग ढूंढने के लिए? फिर Oh, we have a very big ministry. Then I say, why do you go to other churches to find people? if you are such a great fisherman you won't be fishing in aquariums. अगर इतने बढ़िया मछुआरे आप हो तो एक्वेरियम में मछली थोड़ी पकड़ोगे. हाँ, चर्चेज में जा जाके पैम्पलेट बांटेगा. अरे जो बच गया उसको क्यों बचाने की कोशिश करो? बाहर जाओ ना, वहां बांटो पैम्पलेट. They will go to churches and distribute pamphlets. Those who already saved, why are you trying to save them? Go out and give those pamphlets. Amen. Come on, flow. Don't try to save the saved. जो बचाए जा चुके हैं उन्हें बचाने की कोशिश मत करो. So, first Sunday service of 2026. That's good. Envy, जलन खाते हैं जल्दी से. They are easily It's a sign of an immature believer. एक इमेच्योर विश्वासी का चिन्ह है ये. These are the markers. ये वो मार्कर्स हैं. जब बच्चा वूम में होता है ना तो अल्ट्रासाउंड करके मार्कर टेस्ट होता है कि कितना बढ़ रहा है बच्चा. These are the marker tests that tell you. When the child is in the womb, they do a marker test to see the growth of the child. ये marker test हैं. कोई और है उसकी बड़ी सेवकाई है तो बस उसके लिए उल्टा बोलना है. क्यों? Envy, जलन है क्योंकि. Somebody else has a big ministry, so speak evil of them. Why? Because they're envious. क्यों? क्योंकि क्या है? शारीरिक. Because they are carnal. कई लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं अपोस्टल जी इस फलाने परमेश्वर के दास के बारे में आपके पास क्या कहना है? मैंने कहा मेरे कहने से क्या होता है भाई? Some people मेरा always- ओपिनियन की क्या वैल्यू है? जो परमेश्वर कहता है उस बंदे के बारे में वो असली बात है ना. Some people come and ask me, what do you say about this man of God, Apostle Ji? And I say, how does my opinion matter? What God says about this man, that matters. बाइबल कहती है, गमेलियल ने कहा कि अगर ये लोग परमेश्वर की ओर से हैं तो इनकी बढ़ोतरी कोई नहीं रोक सकता.
और अगर परमेश्वर की ओर से नहीं है तो कुछ टाइम में खत्म हो जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर के विरोधी हो जाओ जो परमेश्वर कर रहा है। Gamaliel said, if these people are from God, nobody can stop their increase. And if they are not from God, after some time, they will automatically die off. But let it not be so that you are going and fighting against God. एक परिपक्व जो विश्वासी है ना, उसका पूरा ध्यान अपनी चाल पे, प्रभु मुझे और बढ़ना है, मुझे फर्क नहीं दूसरा क्या करता है, मुझे परवाह नहीं दूसरा क्या करता है, मैं तेरे साथ ईमानदारी से चलूंगा। प्रभु मैं 2026 में और अच्छी चाल चलूंगा। मेरा कंपटीशन किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं, मेरा कंपटीशन मेरे अतीत से है, क्योंकि मेरा भविष्य मेरे अतीत से बेहतर होगा। A mature believer will look at his own life, is his own walk. He is concerned before God to make his walk upright before the Lord. And he says, Lord, I'm not competing with my brothers or my sisters, but my competition is with my past, so that my future is better than my past. मैं एक बार 100 मीटर रेस देख रहा था। I was looking तो at 100 उसमें एक meter race one व्यक्ति है time. जो भाग रहा था, So this man और was भाग के running. ना बार बार अपने बगल में देख रहा था जो दूसरा बंदा है उसके बगल में, And while running, he was looking at the person next to him. और जो दूसरा बंदा है ना वो सीधे भाग रहा And this other guy was और ये running बार straight. बार साइड में देख रहा But he was looking था। at this ऐसा guy. करने की वजह से इसकी स्पीड कम हुई और जो अपने लक्ष्य की तरफ देखकर भाग रहा था वो सीधे भाग के नंबर 1 आ गया। Because of looking aside, his speed was reduced, but the other one who was straight looking towards the finish line, he quickly reached it and came first. पौलुस कहता है मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया। मुझे क्या मतलब दूसरा अपनी दौड़ दौड़े नहीं दौड़े। परमेश्वर आपसे ये नहीं पूछेगा दूसरे ने अपनी दौड़ कैसे दौड़ी, वो आपसे पूछेगा तूने अपनी दौड़ कैसे दौड़ी। इट्स योर रेस दैट शुड मैटर टू यू। Paul says, I have finished my race. God will not ask you about somebody else's race, did they finish their race or not. He will ask you for your race, and you should be concerned about your own race. गूगल में, जोमेटो में, ब्लिंकिट में रिव्यू देते देते आज लोगों को आदत हो गई है सारी मिनिस्ट्रीज को रिव्यू देने की। So because people keep अरे posting आपके रिव्यू से क्या फर्क पड़ता है, वो है जो रिव्यू देता है। your review does not matter, it is he who gives the review. यू फोकस ऑन योर वॉक। आप अपनी चाल पर ध्यान दो। आपका कंपटीशन दूसरे से नहीं अपने से है। Your competition is not with another, it is with yourself. तभी तो यीशु ने कहा, उसने कहा तू अपने भाई के तिनके को क्यों देखता है, अपने आंख का लट्ठा तुझे क्यों नहीं दिखता। Jesus said, why do you see the speck in your brother's eyes? Can't you see the log in your own eye? वो क्यों तिनका और लट्ठा कहता है। Why is he saying a speck and a log? जिसकी आंख में तिनका है ना, He who has a speck in his जब eye, वो देखेगा अपने तिनके को तो उसको लट्ठा दिखना चाहिए। when he sees मगर his जब speck, he आप should- देखोगे तो उसका लट्ठा आपको तिनका दिखना चाहिए और अपना तिनका लट्ठा दिखना चाहिए। That's what Jesus is saying. You should be more concerned about your own struggles, about overcoming what hinders you to walk boldly in Christ. He who has a speck in his eye, when he sees, he should see that speck as a log, and the one who has a speck in his eye should see it as a log and should get rid of that. You should focus on your own struggles. Amen. अभी वचन शुरू नहीं किया है मैंने, अब बता रहा हूं। अभी मैं सच बोल रहा हूं, अभी तो मैं बस बह रहा हूं, उसके बाद मैं पॉइंट्स में आऊंगा। यू हैव टू मेक एन एनवायरमेंट। आपको एक वातावरण बनाना है। बल्कि हमें ऐसे मसीह बनना है जब आप किसी को देखें जो आपसे बेहतर अपने पिता के साथ चल रहा है, कोई बड़ा भाई जब आप देखें किसी व्यक्ति को, तो वो आपको प्रोत्साहित करने चाहिए। ईर्ष्या नहीं पैदा होनी चाहिए आपके अंदर, प्रोत्साहन पैदा होना चाहिए कि जब वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ ऐसा चल सकता है तो मैं भी चल सकता हूं प्रभु। When you see a believer, a brother walking better than you with Christ in their believer's life, then it should encourage you, motivate you to learn from them. And if they can walk with God like that, then you can also do that.